Hello dear students, how are you all? I hope you all doing good. We are going to start your first chapter of physics of class 9th, that is motion. You all know what is the meaning of motion. Motion means when a body changes its position with time. For example, cars, vehicles which are traveling on road or are in motion, trains and air is also in motion because all the particles are in random motion colliding with each other. A person sitting in a bus, again if the bus is moving, he is in motion and you are also in motion. But then it comes in your mind कि अगर हम एक चेयर पे स्टेबल बैठे हैं तो भी क्या हम मोशन में हैं? What can you say? The answer is yes. बट नहीं, आप कहोगे हम तो रेस्ट में हैं. Okay, now what do you mean by rest? Now rest means when a body remains stationary or its position is fixed. But no, rest and motion they are relative to each other. सिंपल मतलब कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं एंड द बस इज मूविंग, यू आर ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग विद द बस. बाहर से बैठा हुआ या बाहर खड़ा हुआ कोई भी पर्सन अगर आपको देखेगा उसके लिए तो आप मोशन में हैं, बट द पैसेंजर्स जो आपके पास हैं उनके लिए आप रेस्ट पे हैं. सिमिलरली व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए तो रेस्ट पे हैं, बट अगर आपको बाहर से यानी बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, if the earth is rotating then we are also rotating along with the earth, so we are always in motion. तो रेस्ट और मोशन जो है वो डिपेंड करती हैं हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स वो कोऑर्डिनेट्स जिनमें हम कोई भी मोशन जो है उसको स्टडी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो अगर हम अर्थ के अंदर देख रहे हैं एक दूसरे को तो हम सब रेस्ट पे हैं, बट अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है यानी इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग आउटसाइड द अर्थ फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ देन यू आर इन मोशन. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड हेंस वी से दैट रेस्ट एंड मोशन आर not absolute terms, they are relative terms. We have different types of motion. The first type of motion is linear motion, or you can say translational motion, or you can say rectilinear motion. Linear motion कहा जाए या translational motion कहा जाए या rectilinear motion कहा जाए, one and the same thing, which means when a body is moving along one direction. या फिर जब एक बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़े. कोऑर्डिनेट मतलब either a body is moving along x axis like a train moving on a straight track, या फिर एक साइकिल या कोई भी चीज़ जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है उसको हम कहेंगे लीनियर मोशन. सेकेंड यू हैव सर्कुलर मोशन. Now circular motion you all know when a body is moving in a circle around a fixed point. किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड अगर एक बॉडी घूम रही है सर्कल में तो वो है सर्कुलर मोशन, और it is also known as rotational motion. And you have so many examples of rotational motion: a fan rotating about its fixed axis, all the planets revolving around the sun, a stone tied to a string which is revolving in a circle. They are all circular motion. And third is vibrational motion. Vibrational motion also sometimes known as oscillatory motion, but there is a difference between a vibrational motion and oscillatory motion. अब हम कहते हैं हमारा फ़ोन वाइब्रेट करता है, हम ये नहीं कहते हमारा फ़ोन ऑसिलेट करता है. वी से पेंडुलम ऑसिलेट्स, हम ये नहीं कहते कि पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है. तो क्या डिफरेंस हुआ? व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस इज स्मॉल. का मतलब एक पेंडुलम के एग्जांपल ले लें. अगर पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से सिर्फ थोड़ा सा ही डिस्प्लेस होता है, जैसे एक फ़ोन है, ऐसा नहीं है कि फ़ोन बहुत दूर तक जाता है, फ़ोन सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के आसपास थोड़ा बहुत ऑसिलेट करता है तो हम कहते हैं वाइब्रेशन मोशन. सो व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, जब एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है तो हम उस मोशन को कहते हैं वाइब्रेशन मोशन. यानी टू एंड फ्रो मोशन about its mean position. If it is very small then it is known as vibration motion, and if the amplitude is large then that is known as oscillatory motion. And you have the examples of a pendulum, then a child swinging on a swing. They are all the examples of vibrational motion. इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स डिस्कस करेंगे हम: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. बट उन सबको समझने के लिए यू शुड क्लियरली नो द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़.
Whenever you are measuring any quantity, यानी हम किसी भी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी तब कहते हैं जब हम उसको मेजर कर सकते हैं. So quantity which is measurable is known as a physical quantity. But physical quantity is of two types. Now first is scalar, and scalar means having only magnitude. Scalar quantities वो quantities हैं जिनका सिर्फ magnitude है. Now what do you understand by magnitude? Suppose when we are talking about any physical, magnitude का मतलब numerical value. For example, अगर हमारे पास मास है तो हम लिखेंगे मास इज़ 5 kg. हमें इसमें ये नहीं बताना है कि जो मास है वो साउथ में कितना है, वो नॉर्थ में कितना है, वो राइट में कितना है, बिकॉज मास की जो वैल्यू है वो डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होगी. सिमिलरली इफ़ यू हैव 5 मीटर क्लॉथ, तो वो 5 मीटर जो है वो डायरेक्शंस के चेंज होने से चेंज नहीं होगा. तो वो सब चीज़ें, वो सब फिजिकल क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, दे आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़. स्केलर क्वांटिटीज़ को जब भी हम मेजर करेंगे हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ ही मिलेंगी. ओके, देन वी हैव वेक्टर क्वांटिटीज़, एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, पर वो डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज हो जाएं, या फिर उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ टेबल और हम उस टेबल को धक्का लगा रहे हैं बाय सम फोर्स, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं. सपोज यू हैव मोमेंटम, यानी वो क्वांटिटी जो मोशन के बारे में बताती है, तो हम किस डायरेक्शन में वो मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं हमें वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो फोर्स इज अ क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. Similarly, momentum is a quantity which needs magnitude as well as direction. So these are termed as vector quantities. And vector quantities can be positive, can be negative, and can be zero. This will be explained when we will discuss about distance and displacement. The first thing which we are going to discuss is distance and displacement. What do you mean by distance? A very common term which is used. Distance का मतलब है हमने कितना actual path cover किया एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचने में. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर मूविंग अलोंग अ पाथ लाइक दिस, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन. आपको कहा जाए दैट फाइंड द टोटल डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, वी विल मेजर ऑल द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड. दैट मीन्स वी विल दिस प्लस दिस, यानी हम ये सारा ऐड करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा. बट अगर आपको कहा जाए व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, देन द डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक शॉर्टकट रास्ता. हमें इतना लंबा डिस्टेंस कवर करने की ज़रूरत नहीं है. हम सिर्फ ये देखेंगे कि ए पॉइंट तक बी पॉइंट तक पहुँचने में छोटे से छोटा रास्ता, एंड दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस में हमारे पास आ जाता है एक्चुअल पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास आ जाता है दो पॉइंट को मिलाने का सबसे छोटा रास्ता. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने के लिए व्हाट इज़ द डिस्टेंस. अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा, देन दिस इज़ द एक्चुअल पाथ फॉलोड. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा. Distance is half of the circle, which is semicircle, and you'll write half into circumference of the circle, और आपके पास distance आ जाएगा pi r. बट अगर हमें फाइंड करनी हो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे. रिमेंबर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो A से B हम घूम के क्यों जाएं, हम सीधा रास्ता बनाएंगे. यानी you'll draw a straight line which joins A to B, and that is r plus r. So your displacement will be 2 times r. Now again, distance is a scalar quantity because this will always be added actual path, and displacement is a vector quantity. Displacement जो है वो direction dependent है और distance जो है वो direction dependent नहीं है. This is just the magnitude. For example, अगर आपको कहा जाए a body covers a circular path and returns to its initial position. एक body A से distance शुरू करती है और A पे ही वापस आ जाती है. Then what is the distance and what is the displacement? Now distance means the actual path covered. तो actual path covered कितना है, एक A से फिर वापस A पे आने में it will be equal to the circumference of the circle.
बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। का मतलब ए पॉइंट से शुरू करके अगर हम ए पे ही वापस आ गए तो हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? 0। हेंस वी से दैट दिस इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वेयर एज डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की डेफिनेशन ये कहती है दैट डिस्टेंस is the length of the actual path traveled by the body, whereas displacement is the shortest distance between the initial and the final position. Second point is distance traveled depends upon the shape of the path, यानी हम हमेशा पूरा path लेंगे and all the distances or actual path will be added, whereas the displacement is the difference between the initial and the final position. Third and the most important point is कि distance जो है वो हमेशा positive होगा, whereas displacement can be positive, negative and 0. Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. We always measure distance and displacement in meters or kilometers, but the SI unit is meter and CGS unit is centimeter. I hope you know what is SI and CGS. So we use SI system. One more question. Find the distance and displacement when a ball rolls from A to B and then to C. मतलब हमें find करनी है distance when the ball first moves from A to B and then comes to C point. Remember distance means the actual path traveled. तो इसमें हम बॉल चाहे वापस आ रही है चाहे कहीं भी जा रही है, हमें सब कुछ ऐड कर देना है। यानी when it goes from A to B, the distance या actual path is 10. देन मूव्स फ्रॉम B to C। जब ये B to C जा रही है तो डिस्टेंस कवर्ड या एक्चुअल पाथ कितना है? 2। तो हम 2 को भी क्या कर देंगे? हम 2 को भी ऐड कर देंगे एंड यू विल गेट 12 मीटर एज द डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी हो जाएगी? C पोजिशन तक हम क्या कर देंगे? A से C तक का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? 10 - 2, क्योंकि बी सी को तो हम माइनस कर देंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे ए बी माइनस बी सी विच विल बी 8 meters. These are the 2 questions for your practice. In the first question, minute hand of a clock is 7 centimeter long. Calculate the distance and displacement of the minute hand from 9 a.m. to 9:30 a.m. And in the second question, a boy moves from 3 meter towards east and then turns and moves 4 meter towards north. You need to find the distance and displacement of the boy, and the answers are given below. Next, we are going to discuss speed and velocity. Now, speed means it is defined as the distance traveled per unit time, or you can say that this is the rate of change of distance. Distance traveled इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। का मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया इज द स्पीड। अगर कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है तो हम कहते हैं दैट द स्पीड इज़ हाई, एंड इफ़ यू हैव मोर टाइम एंड स्मॉल डिस्टेंस देन यू से दैट द स्पीड इज़ लो। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, बट समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर. Similarly, velocity is defined as displacement covered in a given time, which means speed और velocity में भी वही difference है जो distance और displacement में है. That means that speed is a scalar quantity. Speed एक scalar quantity है, यानी speed will always be positive, whereas velocity is a vector quantity. It can be positive, it can be negative, and it can be zero also. They are measured by the same unit, meter per second or kilometer per hour, and their differences are also same जो distance और displacement के हैं. If you need to convert kilometer per hour into meter per second, क्योंकि हम जो भी measurement करते हैं वो SI system में ही करते हैं, तो हम इसको change करना चाहें 1 kilometer per hour को, तो एक standard result है. Now in 1 kilometer you have 1000 meter, and in 1 hour you have 60 into 60 second. यानी इस सब को सॉल्व करके हमारे पास 5/18 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा. यानी जब भी आपको कोई भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी हो,
You simply multiply by 5/18. You'll get the answer in meter per second. Now the question is कि हमें स्पीड और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. स्पीड सिंपली मीन्स द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन टाइम. चाहे हम साउथ में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, स्पीड में हमने सबको ऐड अप कर देना है, जिससे हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या स्पीड है वो नहीं मिलती. सो वी स्पेसिफाई द वेलोसिटी एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ड्राइंग एन एरो, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसके ऊपर भी एक एरो लगा देंगे. देन यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी बाय ड्राइंग एन एरो. जिस भी क्वांटिटी पे एक एरो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिस पे नहीं होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी. नाउ यू हैव स्पीड एंड वेलोसिटी, different types of speeds and velocities. First is uniform speed. Remember, the velocity will be different in different direction, but speed will be the same in all the directions. So first thing is uniform speed. As the name is uniform. Uniform का मतलब एक जैसी. तो जब हमारे पास एक जैसी स्पीड हो, यानी same distances in same interval of time, we consider it to be uniform speed. For example, you have time as 1 second and the distance covered as 1 meter. When the time is 2 seconds, the distance covered is 2 meter. It is 3 seconds, the distance covered is 3 meter. Then you can say that the speed is uniform. तो speed uniform होती है जब हमारे पास equal distances and equal intervals of time होंगे. Then you have non-uniform speed. तो सेकेंड हमारे पास आ जाती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स व्हेन यू हैव अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो विल राइट व्हेन वी हैव अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time or vice versa. Now in case of uniform motion, if you have time as 1 second, the distance covered is 1 meter. If you have time as 2 second, distance covered is 2 meter and so on. यानी अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहें यूनिफॉर्म मोशन का, तो वो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन. So remember, if you have a straight line passing from the origin, then it will always be a graph of uniform motion. Whereas this is the example of a non-uniform motion, means in same interval of time it covers unequal distances. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मान लो हमारे पास ये है 1 hour और हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 1 किलोमीटर. इन 2 hours द डिस्टेंस कवर्ड इज 1.5 किलोमीटर. तो जो हमारा ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ना होके एक कर्व्ड पाथ होगा. तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. ओके, then you have third type of motion or third type of speed as average speed. Average speed find करने के लिए हम हमेशा total distance को divide कर देंगे by total time, तो हमें average speed मिल जाएगी. And lastly we have instantaneous speed. Instantaneous speed means at any instant. The speed of the vehicle at any instant is known as instantaneous speed.